what is your take on food adulteration? Indian consumers are highly price sensitive. So we will find something which is a replica of that thing. There is always a tug of war between Indian brands or foreign brands. Indian market again is very new to organic sustainable products. And what is your take, Dhruv, on refined sugar? The only difference here is कि थोड़ा बहुत micronutrients जो हैं ऊपर नीचे होते हैं. Non-profit का काम कर रहे हैं, but you are building a for-profit organization. Business चला रहे हैं तो पैसा कमाना है. In fact, इससे पहले मैं नॉन प्रॉफिट साइड में था. And what role is tech playing? इसमें tech का कितना intervention है? स्टार्टिंग हम लोगों ने टेक से ही करी थी. Hi everyone, welcome to a new episode of Growthcast. Today I have with me Dhruv Joshi, who is my college senior and also a successful entrepreneur. He's working with small farmers based out of Uttarakhand and building his brand Hoi, where he is bringing hand-packaged products for end users. We'll understand with him how he's building his brand. We'll also get to understand what are some of the fundamental principles that he is working on in building this brand. At the same time, how he took leap of faith from working in a job to becoming a successful entrepreneur. Stay till the end because you'll get nuggets of wisdom that you'll not get anywhere else. Hi Dhruv, welcome to Growthcast and thank you so much for taking out time. I'd like to understand from you your entrepreneurship journey, how everything started and the story behind how. Right. Hoi. Hoi. Thanks Shashank, thank you for having me. So basically talking about the entrepreneurship journey, so it basically started after my engineering. I was working with a company called Ericsson. I was working for an American client और कंपनी स्वीडिश थी, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहा हूँ. आई मीन वर्किंग फॉर एन अमेरिकन क्लाइंट, सिटिंग हियर इन इंडिया, स्वीडिश कंपनी के लिए काम करना, तो सोचा कुछ अलग किया जाए. बचपन से स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, तो आई मीन ट्राई टू engage myself into sports and all these things, but still thought of getting something in the longer run which is aligned to you and trying to do something different. So फिर उस समय डिफेंस का मन किया. I tried for Indian Army, सिलेक्शन भी हुआ, मेरिट वगैरह सब आ गया, बट मेडिकल्स में किसी रीजन से नहीं हुआ. I got myself operated. मेडिकल्स में नहीं हुआ, तो सो इंटरेस्टिंगली उस टाइम जो फाइनल मेडिकल बोर्ड था, RNR रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल दिल्ली में जो मेडिकल बोर्ड होता है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बट क्वेश्चन पूछा तुम आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो. तो उस टाइम पे वो पैशन था कि नहीं, पेट्रियोटिज्म है, ये क्लीशेड आंसर कि बेसिकली आई वांट टू सर्व माय नेशन, ऐसा कुछ करना है. तो दे सेड समथिंग वेरी स्ट्राइकिंग, जो आज तक मुझे बहुत वो वर्ड्स याद हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दे काइंड ऑफ स्टार्टेड दिस, दे वर वेरी सीनियर आर्मी फोर्सेज ऑफिसर्स, मोस्टली सीनियर डॉक्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी. तो उन्होंने बोला कि देखो, अगर तुम्हें सही में कुछ करना है अगर लाइफ में, तो इंडियन आर्मी इज अ गुड ऑप्शन, बट देन अगेन इट्स अ हाईली ब्यूरोक्रेटिक बिग ऑर्गेनाइजेशन, और यू विल बी फॉलोइंग अ सर्टेन नॉर्म्स जो पहले से चलते आ रहे हैं सिंस कॉलोनियल टाइम्स. अगर आपको कुछ करना है तो आप गांव में कुछ करिए और लोगों के साथ में वहाँ काम करिए. वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो अनएड्रेस्ड है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो देश फेस कर रहा है. तो वो दैट वाज रियली काइंड ऑफ हार्ड हिटिंग फॉर मी. एंड देन I started exploring options कि क्या करना चाहिए रूरल डेवलपमेंट में. So entrepreneurship came by an accident. First मुझे रूरल डेवलपमेंट में कुछ करना था, तो उसके लिए एक कोर्स है रूरल मैनेजमेंट का, इरमा आनंद से वो कोर्स किया. वर्क विद अ फ्यू नॉन प्रॉफिट्स, और वहाँ की प्रॉब्लम समझते हुए आई वेंट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. तो पहले रूरल डेवलपमेंट वाला फोकस था, एंड देन बेसिकली वहाँ की प्रॉब्लम समझते हुए आई गॉट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, व्हिच आई थिंक कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम in rural India. Got it. And you also closely work with lot of women farmers. तो वो जर्नी कैसी है, and can you just walk us through कि कैसे आपने पूरा प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट से सेट किया है? Sure. तो देखिए, पिछले अगर मैं आपको 15-20 सालों का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट थोड़ा सा बताऊं, बहुत लंबा तो नहीं. देश में बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं रूरल डेवलपमेंट को लेके. बहुत सारे CSR ऑर्गेनाइजेशंस ने स्टार्ट किए हैं. गवर्नमेंट ने लाइवलीहुड्स के लिए, मेनली आजीविका के लिए महिलाओं की, a lot of programs have been initiated. तो रूरल लेवल पे बेसिकली जैसे सेटअप हो रहे हैं लाइवलीहुड प्रोग्राम्स, मेनली एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए और लाइवलीहुड्स को बढ़ावा देने के लिए, इज अराउंड विमेन ग्रुप्स. तो गांव में टिपिकली 10-12-15 महिलाओं का एक ग्रुप होता है, जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, स्वयं सहायता समूह. और आज की तारीख में देश में करीब 1 करोड़ स्वयं सहायता समूह है और 10 करोड़ महिलाएं उन SHG से जुड़ी हुई हैं. Okay. So institutional framework is very strong at the grassroots. All we need to do is build their capacities. उनका थोड़ा क्षमतावर्धन करके you need to build better marketing linkages for them. तो वो उस तरह से हम लोग का मॉडल रहता है कि
गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ काम करते हैं. दैट इज हाउ वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द वैल्यू चेन थ्रू दो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. Got it. And what are checks that you have put in place to make sure कि जो आपकी brand guidelines है, those are strict to? जी, right. So I mean checks तो हैं काफी सारे, but before I talk about those checks, I will again talk about some historical context कि वो checks क्यों required हैं. Okay. So typically food supply chains जो है post industrial revolution जो supply chain है, they are mainly concentrated around aggregation. तो आप कोई बल्क में कमोडिटी खरीदेंगे और बल्क में कमोडिटी खरीद के उस पर वैल्यू ऐड करेंगे, फिर वो कमोडिटी कोई प्रोडक्ट बनेगी, फिर वो प्रोडक्ट किसी दूसरे वैल्यू चेन का इंग्रेडिएंट बन जाएगा. तो जब एग्रीगेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो प्राइस आर्बिट्राज जो है वो बहुत कम रहता है. तो द काइंड ऑफ रिस्क इज वेरी हाई. इसलिए स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंट्रोल्स आर टेकन इन प्लेस जिससे वो प्राइस कंट्रोल में रहे. हम लोग बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं जो कि बहुत एज ओल्ड तरीका है. तो इट्स नॉट लाइक कि 100 साल या 200 साल से वो तरीका इन प्लेस आया है. वो क्वालिटी सिस्टम्स जो है ना वो हमारी दादी नानी सबके पास पहले से थे. इट्स जस्ट दैट कि उस डेमोक्रेटिक तरीके से उसको हमको आगे लेके जाना है. तो ऑल्दो और जो मैं उन चेक्स की बात कर रहा हूँ ना, हाँ वी आर डेफिनेटली लिंकिंग देम टू मॉडर्न एज साइंस. जैसे बेसिक कुछ चीजें होती हैं, हम सबने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पीएच, एसिडिटी, टेम्परेचर, right. इस तरह की चीजें हम लोग वो चेक्स आर देयर इन प्लेस एंड उसको हम टाइम टू टाइम टेस्टिंग कराते रहते हैं. बट द लार्जर पिक्चर इज वो चेक्स वो हमारी दादी नानी के पास पहले से थे. एंड दैट इज हाउ रूरल इंडिया स्टिल हैज that those checks in place. And what is your take on food adulteration? क्योंकि वो काफी आज की डेट में prevalent है and there are a lot of brands जिनका नाम भी call out होता रहता है. So what's your take on that? Why does that happen and how you are trying to prevent that at your end for your own brand? Definitely. So शशांक, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि फंडामेंटली फूड एडल्ट्रेशन होता क्यों है. ठीक, इंडियन कंज्यूमर्स आर हाईली प्राइस सेंसिटिव. ठीक है, और जो इतने मल्टीनेशनल कंपनीज है दे हैव टू गिव प्रोडक्ट्स एट अ सर्टेन प्राइस एट स्केल. ठीक है, और कई बार क्या होता है, एंड एग्रीकल्चर इज अ वेरी वॉलेटाइल थिंग. तो जब वो वॉलेटिलिटी आती है तो हम हमेशा वो इंग्रेडिएंट नहीं दे सकते हैं, और अगर हम वो इंग्रेडिएंट नहीं दे पा रहे हैं तो वी विल फाइंड समथिंग विच इज अ रेप्लिका ऑफ दैट थिंग. तो हम उससे सिमिलर चीजें कलर्स मिला देंगे. ठीक है, अगर हमें कोई फ्रूट मान लीजिए महंगा पड़ रहा है तो हम उसमें कलर मिला दिया, मेरा प्राइस डाउन आ गया और मेरा प्रोडक्ट भी इन अ वे स्टैंडर्डाइज हो गया. तो दिस इज हाउ द फूड सप्लाई चेन वर्क्स. बट इन अवर केस वो अडल्ट्रेशन हम इसलिए चेक कर पाते हैं बिकॉज चीट करने की एबिलिटी कम हो जाती है जब वो बिल्कुल एट सोर्स हो. जो किसान उगा रहा है वही अगर उसको वैल्यू ऐड कर लेगा तो कौन चीटिंग करेगा ना. Right. तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रहता है, ट्रेसेबिलिटी रहता है और कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट मिलता है. Got it. And there is always a tug of war between Indian brands or foreign brands when it comes to organic, sustainable products. आप इसमें कैसे differentiation create कर रहे हो for your brand? So Indian market again is very new to organic, sustainable products. इंडियन FMCG लैंडस्केप वो अभी भी 5-6 कंपनीज हैं, कुछ इंडियन हैं, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो उसके अराउंड प्ले कर रहे हैं. तो कंसोलिडेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है अराउंड फूड. डेफिनेटली जो फॉरेन ब्रांड्स हैं, कुछ सस्टेनेबल ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं, बट देन अगेन इट्स वेरी काउंटर इंट्यूटिव. आप एक तरफ बोल रहे हो दैट ब्रांड इज सस्टेनेबल, बट अगेन फूड सप्लाई चेन को वो इतना लंबा करके किसी कंट्री से लेके आ रहे हैं. एंड ग्लोबली इफ यू टॉक अबाउट अ फ्यू नंबर्स, 25% कार्बन एमिशन ईयर is attributed to food supply chains. Okay. तो जो मल्टीनेशनल कंपनी सो कॉल्ड सस्टेनेबल वर्ड यूज करते हैं वो एक्चुअल में सस्टेनेबल है नहीं, बिकॉज दे आर डिफाइंग दैट सेम लॉजिक कि हमको कार्बन एमिशंस कम करने हैं, लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है और उस तरह से. दैट इज द स्टोरी वी आर अगेन प्लेइंग फ्रॉम अ ब्रांड पर्सपेक्टिव. कंज्यूमर्स को भी वैसे एजुकेट कर रहे हैं कि व्हाट इज लोकल इज एक्चुअली सस्टेनेबल फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू. Got it. एक चीज मैं एंड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूंगा कि कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होता है वो स्लाइटली हायर कॉस्ट रहता है कंपेयर टू से अ नॉर्मल प्रोडक्ट. जैसे मैं देखता हूँ किसी कॉम प्लेटफॉर्म पे कि ऑर्गेनिक भिंडी में भी 28, नॉर्मल है 25. तो वो डेल्टा ऑर्गेनिक होने पे किस चीज का आता है? इज दिस अ फैक्टर ऑफ कि क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है? देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो डेफिनेटली थोड़ा सा इनिशियल ईयर्स में ज्यादा होता है, बट अगेन दैट इज मोर एट्रीब्यूटेड टू द डिमांड साइड ऑफ थिंग्स.
कंज्यूमर डिमांड ज्यादा है और उतना प्रोडक्शन नहीं है देश में अभी भी उतना, तो उस वजह से थोड़ा सा जो प्राइस है ना, मतलब मैक्सिमम बेनिफिट जो है उस ऑर्गेनिक का अभी भी फार्मर्स को नहीं जा पा रहा है, इवन दो फार्मर्स जो ऑर्गेनिक कर भी रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिमांड सप्लाई गैप। तो ऑर्गेनिक प्राइसेस शायद इसलिए थोड़े से महंगे होते हैं कि कंज्यूमर डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है, बट आई डोंट से कि अगर एक स्केल हम अचीव कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो बेसिकली बैलेंस आ जाएगा और शायद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का प्राइसेस भी कम आ जाए। एंड आई थिंक जस्ट फॉर ऑडियंस सेक आप उसको सिंपलीफाई करना चाहोगे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता क्या है, व्हाट इज अ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट? तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज टिपिकली समथिंग जिसमें कि किसी तरह का केमिकल ना पड़ा हो इंग्रेडिएंट के फॉर्म में भी, और जो उसमें जो कमोडिटी है उसके फॉर्म में भी, तो उसमें किसी तरह का पेस्टिसाइड ना पड़ा हो, किसी तरह का फर्टिलाइजर ना पड़ा हो, किसी तरह का इंसेक्टिसाइड ना हो, किसी तरह का वीडिसाइड ना हो। इन शॉर्ट उसमें कोई भी मैन मेड केमिकल ना हो। इट्स प्योर बायोलॉजी एंड नॉट बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, इन वेरी सिंपल। तो इसकी शेल्फ लाइफ भी कम हो जाती है क्या, बिकॉज यू आर नॉट एडिंग एनी प्रिजर्वेटिव? तो अगेन लाइक Shashank, so again I'll go to history because history is very intriguing when you talk about food systems. तो अगर आप बात करें फिर अगेन 200-300 साल पहले जाते हैं, अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो स्पाइस ट्रेड के लिए आए, और स्पाइस उन्हें क्यों चाहिए था? बिकॉज स्पाइस गेव देम एन ऑप्शन टू यूज दो स्पाइसेस, प्रिजर्व देयर फूड। उस समय केमिकल्स नहीं आए थे ना, केमिकल इज अ वेरी रिसेंट फिनोमिना। तो उस टाइम पे दे गॉट दो स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया, प्रिजर्व देयर फूड, जिससे वो एक्सप्लोरेशंस और ज्यादा कर सके, जिससे उनके जो वॉयज पे निकलते थे, जो शिप पे लोग निकलते थे, उनके पास खाना लंबे समय तक रखे और महीने महीने निकलते जाए। Right. तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जो प्रिजर्वेशन टेक्निक है ना, वो नेचुरल भी होती हैं, तो प्रिजर्वेटिव ऐड करना जरूरी नहीं है। हमारे मसाले, हमारा फॉर दैट मैटर शुगर इज अ फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेटिव, हनी इज अ फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेटिव, स्वीटनर्स कुछ तरह के, नमक इज अ फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेटिव। तो केमिकल्स आने के बाद से वो शायद हम भूल चुके हैं कि हमारे पास नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स भी हैं। इनफैक्ट अभी भी अगर हम देखेंगे तो प्री हिस्टोरिक एज का बहुत सारा हनी और इस तरह के प्रोडक्ट्स मिले हैं जो आज तक एडिबल हैं, कभी खराब नहीं हुए हैं। Got it. And what are the suite of products that you are offering? क्या है offerings So from Hoi? Shashank, we are offering a range of products which are naturally preserved, जो ट्रेडिशनली हो सकते थे। चटनीज होते हैं, कुछ ट्रेडिशनल चटनीज, पिकल्स होते हैं, जैम्स होते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में फ्रूट प्रोडक्शन काफी है और किसानों को उसका भाव नहीं मिल पाता, तो प्रिजर्विंग देम इन फॉर्म ऑफ जैम इज अ गुड ऑप्शन, ल्यूक्रेटिव ऑप्शन फॉर द फार्मर्स ऑल्सो। तो अभी हम लोग के पास ये रेंज है, एंड as we go along we'll add more products which can be done locally easily and also are appealing to the consumer। जैसे कुछ मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स हम लोग ऐड करने का सोच रहे हैं, कुछ पिकल्स और जैम्स का रेंज बढ़ाने का सोच रहे हैं, which are I mean viable to do from a business standpoint in an e-commerce setup in India। Right. और किसानों को भी उसका मतलब basically there is a certain delta which the farmer is also able to get by selling that product। And how is the demand like abhi? Do you get mostly through your website or you use other platforms as well for drawing demand? So Shashank, इसमें 90% of the demand is from our own website। So आपने भी जैसा बोला था कि क्योंकि प्राइस पॉइंट का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, दैट इज व्हाई मार्केट प्लेसेस पे इट्स अ प्राइस सेंसिटिव काइंड ऑफ अ थिंग, प्लस यू हैव टू इन्वेस्ट मोर ऑन कीवर्ड्स रादर देन द स्टोरी। Right. For us, creating an awareness to the consumers and getting them aligned to that mission is very important। इसलिए हम सारा ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे ही, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सेल इज थ्रू आवर ओन वेबसाइट, जिसको कि हम जनरली मेटा के थ्रू, बेसिकली ऑर्गेनिक कंटेंट के थ्रू और पेड कंटेंट के थ्रू, दोनों की तरह कस्टमर्स को लेके आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमको अपने वेबसाइट पे कस्टमर्स को लेके आके डेटा मिलता है, उनसे इंसाइट्स मिलते हैं, जिससे कि हम बेटर प्रोडक्ट्स बना सके उनके लिए। एंड अभी आपको कहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांड दिख रही है? ध्रुव, इज इट नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, या कैसा इस मतलब उसका स्प्लिट कैसा है? वी लुक एट पैन इंडिया लेवल। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो शशांक, बेसिकली हमने दिल्ली में एक वेयरहाउस सेटअप किया था। वी वर थिंकिंग कि उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, दिल्ली के आसपास अच्छा डिमांड रहेगा, बट सरप्राइजिंगली हमारा मैक्सिमम सेल जो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द सेल इज इन साउथ इंडिया। स्पेशली जैम्स का जो सेल है, प्रिजर्व्स का जो सेल है, वो साउथ इंडिया में ज्यादा है। एंड इनफैक्ट हम लोगों ने कुछ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी कंटेंट डेवलप करना शुरू कर दिया है, जस्ट टू एजुकेट पीपल हु आर नॉट वेरी
कॉन्फिडेंट विद हिंदी और इंग्लिश और ऑल दीज लैंग्वेजेस, तो वर्नेकुलर फॉर्म में भी कंटेंट शुरू कर दिया था। स्टेट का अगर बात करें तो कर्नाटका इज प्रेडोमिनेंट, तो बैंगलोर, मैसूर, उडुपी, इस इन एरिया से काफी ऑर्डर्स आते हैं। आई थिंक पॉपुलर तो यही है कंसेप्ट, जो लोगों के दिमाग में ये ऐसे ही परसीव करते हैं कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादा मे बी जैम जी एंड जी जी चटनी अचार ये सब इधर का ज्यादा फिनोमेना है, सो दिस इज जी ड्रास्टिकली डिफरेंट ट्रेंड दैट यू जी आर सीइंग। दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी आल्सो ऑनेस्टली। तो जब दैट इज व्हाई आई सेड ना कि अगर आप अपने वेबसाइट के थ्रू करते हो, वी गेट अ लॉट ऑफ डेटा, हमें कुछ इनसाइट्स मिले, वी टॉक टू अ फ्यू कस्टमर्स डाउन साउथ, उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, हम वी आर लविंग इट, और फिर हम वी डबल डाउन ऑन आवर इन्वेस्टमेंट्स इन साउथ इंडिया दिस थिंग ऑडियंस, और वहां से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड व्हाट इज योर टेक ध्रुव ऑन रिफाइंड शुगर? मतलब जी मैं देखता हूँ दो तरह की कॉन्वर्सेशन होती जी है। जी एक जगह कहा जाता है कि इट्स ओके डिसेंट हाँ क्वांटिटी में, एक तरफ है जो इन्फ्लुएंसर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, वो कहते हैं एकदम ही नहीं लेना हाँ चाहिए, इट्स हाँ। डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सो आई वुड से रिफाइंड शुगर डेफिनेटली, मतलब थोड़ा कुछ एविडेंसेस हैं उसके, बट दैट इज मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, बट दैट इज मेनली फॉर पेशेंट पीपल हु आर आइदर डायबिटिक और प्री डायबिटिक। हम जैसे लोग, अगर यंग लोग हैं जिनको कोई डायबिटीज का प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए मॉडरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15-20 ग्राम 2-3 टीस्पून अगर खा लें एक दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम रिफाइंड शुगर वर्सेज अदर फॉर्म्स ऑफ शुगर बात करें, जैगरी की बात होती है और स्वीटनर्स की बात होती है, इवन हनी फॉर दैट मैटर इज फ्रक्टोज, ठीक है, तो वो फ्रक्टोज जब ब्लड में जाता है तो ग्लूकोज स्पाइक तो वो भी देगा, ठीक है। राइट। द ओनली डिफरेंस हेयर इज कि थोड़ा बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ऊपर नीचे होते हैं, बट देन अगेन थोड़े मॉडरेट क्वांटिटी में खाएंगे तो ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं पड़ता है रिफाइंड शुगर। ऑल्दो हम लोग अभी दूसरे फॉर्म्स ऑफ शुगर यूज कर रहे हैं, जैगरी यूज कर रहे हैं, खांड यूज कर रहे हैं, बट आई वुड डेफिनेटली से कि इट्स मोर ऑफ अ फैट एंड लेस ऑफ मतलब ठीक है, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको नहीं लेना हाँ चाहिए, बट देन इट्स फाइन, मॉडरेशन में आई थिंक इट्स फाइन। आई थिंक एनीथिंग इन मॉडरेशन इज Yeah. बेटर टू कंज्यूम। अगर एक्सेसिव आप करोगे तो किसी भी चीज का वो डेट्रीमेंटल ही है। एक चीज मैं ऑडियंस को ये भी थोड़ा समझाना चाहूंगा, क्योंकि पीपल जनरली बाई दीज प्रोडक्ट्स, तो इसका कॉस्टिंग कैसे रहती है? मतलब इफ आई टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ फार्मलैंड इन उत्तराखंड, जी जी देन दैट प्रोडक्ट कमिंग टू से एंड कंज्यूमर, सो जी व्हाट आर डिफरेंट कॉस्ट इन्वॉल्वड इन मेकिंग श्योर दैट इट लैंड्स टू द एंड कंज्यूमर, और वो कैसे आप कैलकुलेट करते हो? श्योर श्योर। तो देखिए, कॉस्ट का सबसे पहले हम लोग क्योंकि फार्मर्स के साथ काम करते हैं, तो हमारा जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है दैट इज मेनली कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ठीक है, कि जिसमें हम ये देखते हैं कि किसान को कितना बेनिफिट अगर मिल पा रहा है उसका। तो जनरली वी ट्राई कि जो प्रोडक्ट का एमआरपी है उसके 50%, मतलब हमारे एमआरपी कैलकुलेशन जब इनिशियली हम लोगों ने किए थे तो पूरा स्टडी करा था अक्रॉस कमोडिटीज की कितना कितना प्राइस पिछले 10 साल का एवरेज कितना रहा है, उसके ऊपर हम कैसे प्राइस कर सकते हैं, और बाकी कंपटीशन को भी मद्देनजर रखते हुए कि वी केम अक्रॉस दिस प्राइस। बट मेजरली इफ यू टॉक अबाउट द प्राइस बिल्डअप, तो उस तरह से रहता है कि ऑलमोस्ट फॉर 50% ऑफ दिस एंटायर एमआरपी इज गोइंग टू द फार्मर्स या फार्मर ग्रुप्स जो होते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ इज काइंड ऑफ बिल्ट ऑन मार्केटिंग और उस तरह के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए। Got it. And you work with lot of women farmers. So is there any story that you'd like to share जो आपको काफी inspiring लगी हो, since you've been working with them since so long? So definitely यार, stories तो when you are working with farmers, तो every day there is a story, right from, so if I talk about a very recent meeting with a woman called Tulsi Devi who lost her husband recently, तो उनके 4 बच्चे थे और मतलब बच्चा पालने के लिए भी उनको दिक्कत हो रही थी, बट देन जैसे जैसे वो मतलब these women of स्पेशली पहाड़ी एरिया में जो महिलाएं होती है ना, क्योंकि पुरुष जो है वो सब चले जाते हैं, देयर इज रैम्पेंट माइग्रेशन, दे आर वेरी स्ट्रांग। तो इवन आफ्टर शी लॉस्ट हर हस्बैंड, शी वाज एबल टू गेट बैक, शी जॉइंड सच ग्रुप्स, जो इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। शी जॉइंड सच ग्रुप्स, और आज की तारीख में शी इज एबल टू टेक केयर ऑफ हर किड्स, टेक केयर ऑफ हर दिस थिंग, घर के खर्चे निकलते हैं, बच्चे भी बाहर पढ़ने भेज दिए हैं। तो एवरी डे वी हियर सच स्टोरीज कि इस तरह से आप यू आर नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बट यू आर अ पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन, जहां आप वहीं पे वैल्यू ऐड भी कर रहे हो, जिससे आपके परिवार को रोजगार भी मिल रहा है। And what role government is playing into this particular sector? आपको लग रहा है कि there is sufficient intervention or much more needs to be done for this sector to scale more? Yeah, definitely. शशांक, बेसिकली गवर्नमेंट ने अच्छा रोल प्ले किया है। गवर्नमेंट ने अच्छा रोल कहाँ प्ले किया है? गवर्नमेंट ने अच्छा रोल वहां प्ले किया है जहां पे उसने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं एट स्केल, Right. ठीक है।
गांव में ग्रुप्स बनाना, उनको फाइनेंस से जोड़ना, बैंक लिंकेजेस कराना, जनधन योजना कराना, उस तरह की चीजों में गवर्नमेंट ने अच्छा योगदान दिया, देयर वाज नो डाउट अबाउट इट. बट जहां पे गवर्नमेंट को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, दैट इज द सप्लाई चेन पार्ट. ठीक है, टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इंटरवीन ऑन द सप्लाई चेन पार्ट, बट दैट इज समथिंग विच आई पर्सनली फील दैट शुड बी लेफ्ट टू मार्केट्स. तो अगर आप वहां पे वो इकोसिस्टम डेवलप करने का कोशिश कर रहे हो जहां पे मोर एंटरप्रेन्योर्स कैन कम अप एंड बिल्ड दैट सप्लाई चेन, क्यों आज की तारीख में बहुत सारी गवर्नमेंट्स उन प्रोग्राम्स को यूज करके वो भी करने की कोशिश कर रही है कि हम मार्केट में जाते हैं, बट देन अगेन आई वुड से दैट इज नॉट सस्टेनेबल, बिकॉज गवर्नमेंट शुड बी मोर फोकस्ड ऑन बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस rather than building supply chain around it, और उसके around ecosystem बनाना चाहिए. And how supply chain works in your category, कैसे operate जी. करती है? तो टिपिकली जो होता है, जो फार्मा प्रोड्यूस होता है, तो वी वर्क विद इंस्टीट्यूशन जिसके ओनर्स ही फार्मर्स होते हैं. सो दीज इंस्टीट्यूशंस आर टिपिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या विलेज लेवल कोऑपरेटिव्स या फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि आजकल काफी बजवर्ड चल रहा है, एफपीओ. ठीक है. सो इन इंस्टीट्यूशंस में these are owned and managed by the farmers. तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो किसान ही होते हैं और उनका सारा प्रॉफिट जो है किसानों को ही जाता है. तो अ फार्मर बेसिकली सेल्स देयर प्रोड्यूस टू दोस कोऑपरेटिव्स. वो कोऑपरेटिव्स उसको खरीदते हैं, उसका पैसा किसानों को दे देते हैं. ठीक है, दैट इज वन काइंड ऑफ पेमेंट दैट द फार्मर इज गेटिंग अपफ्रंट फ्रॉम दर्स कोऑपरेटिव्स. उसके बाद जो कोऑपरेटिव्स का जो बेनिफिट जो होता है, सपोज हमने खरीदा और या उन्होंने डायरेक्ट मार्केट में बेच दिया उन कोऑपरेटिव्स ने सामान, तो जो उनसे जो प्रॉफिट कमाते हैं कोऑपरेटिव्स, वो वापस एज अ डिविडेंड फार्मर को जाता है. सो टिपिकली इट्स इनकम इन टू फॉर्म्स. अमूल का अगर आप एग्जांपल दें, तो अमूल में आज भी जो किसान को डिविडेंड के फॉर्म में जाता है, डेली का वो दूध से कमाते हैं, लेकिन 36 लाख किसानों को आज भी डिविडेंड जा रहा है अमूल की तरफ से. तो उस तरह का ही मॉडल है. And you have worked at Amul as well, right? Yeah, so yeah. what has been your learning, why it is such a successful brand in India? So Amul, again, it's a very inspirational brand. In fact, I've been deeply involved in Amul. मतलब Amul में ज्वाइन करने के बाद भी, उससे पहले भी I've been a part of that mission, और शायद आज भी वो करने की कोशिश कर रहा हूँ. अमूल की सक्सेस के पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो शशांक बोलेंगे इज अ कमोडिटी लाइक मिल्क. ठीक है, दूध इज अ पेरिशेबल कमोडिटी. तो जो बोलते हैं ना कि whatever doesn't kill you makes you stronger, या जब आती है ना, जब प्रॉब्लम आती है, तो पीपल कलेक्टिवाइज, हम सब साथ आते हैं, वी बिल्ड रेवोल्यूशंस अराउंड इट, मूवमेंट्स बनते हैं. अमूल इज अ मूवमेंट, इट्स नॉट अ ब्रांड. तो जब दूध का प्रॉब्लम आया, सो देयर वाज अ वेरी फेमस कंपनी कॉल्ड पॉल्सन, इसका मोनोपोली था इंडियन मार्केट में, और उन्होंने बहुत ही खराब प्राइसेस देते थे फार्मर्स को. तो पॉल्सन ने जब फार्मर्स को तंग करना शुरू किया, तो दैट, और दूध क्या है, फार्मर स्टोर भी नहीं कर सकते थे क्योंकि दूध खराब हो जाता था. तो फार्मर्स क्रिएटेड अ मूवमेंट अराउंड दैट, कलेक्टिवाइज्ड, एंड दैट इज हाउ अमूल वाज बिल्ट. सो आज की तारीख में भी अमूल को बोलते हैं ना कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी, बहुत अच्छा है, अमूल की मार्केटिंग बहुत अच्छी है, बट आई वुड से अमूल इज एन इंस्टीट्यूशन जिसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसके 36 लाख किसान जो उसके साथ में जुड़े हुए हैं. So yeah, that's mostly about it. And I think nobody has came even closer to beat the wit and humor that they have in their brand communication. So do you feel that branding also plays a very important role in your category D2C for a brand to kick off and take it forward? Yeah, definitely. So typically अगर देखा जाए तो any brand has two functions. ठीक है, मतलब एक तो दो attributes होते हैं उसके, एक one is a functional attribute, the other is psychological और emotional attribute. ठीक है, तो functional attribute again is very important कि मेरे, अगर मैं for example if I'm selling a product, क्या nutritive value है उसकी, taste कितना अच्छा आ रहा है, ठीक है, और मेरे को health benefits क्या हैं, उस तरह की चीज. These are functional attributes. But then there is जैसे आपने अमूल का example दिया, there is an emotional thing attached to it. That could be something which is either a part of the news, जैसे topicals अमूल के बहुत famous हैं जो, या maybe that Amul girl which is basically a part of everyday story of theirs in form of topicals, जो आज से 70 साल पहले सिल्वेस्टर डाकुना ने शुरू किया था. तो वो एक बहुत ही important brand asset है. But again I would say more than that, it's the power of that institution. इतना मिल्क है, आज की तारीख में भी इतने फॉरेन ब्रांड्स आने की कोशिश करिए, न्यूजीलैंड के ब्रांड्स आए, फ्रांस के ब्रांड्स आए, स्विट्जरलैंड के ब्रांड्स आए, मिल्क जायंट्स आई वुड से, बट दे वर नॉट एबल टू पेनिट्रेट इन इंडियन मार्केट. और आज की तारीख में उनको भी मतलब बाय आउट हो गए हैं इंडियन प्लेयर्स के द्वारा ही, क्योंकि इट्स अ फार्मर्स
movement. So you Milk. feel कि local and decentralized system will be the future going forward in India also? यार शशांक, इंटरेस्टिंगली आई थिंक व्हाइल आई वाज कमिंग हियर आई वाज थिंकिंग अबाउट पॉडकास्ट. ठीक है, तो आप सोचो आज से 15-20 साल पहले जब हम लोग छोटे थे, उस टाइम पे दी ओनली सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन वाज टीवी. देखते थे ना हम लोग, Right. ठीक है. इनफैक्ट आप ही की पॉडकास्ट में संजीव सर को सुन रहा था. संजीव सर बता रहे थे कि एक चैनल आता था और वो भी संजीव बिखचंदानी सर, द फाउंडर ऑफ naukri.com, Right. whom you invited on the Yes. podcast. एक चैनल आता था, वो भी लिमिटेड एक्सेस था. ठीक है, आज की तारीख में द एक्सेस टू कंटेंट इज डाइवर्स. ठीक है, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर ट्राइंग टू डेवलप कंटेंट, एजुकेट पीपल. ठीक है, तो चीजें डेमोक्रेटाइज हो रही हैं. फाइनेंस की बात करें तो देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट विच इज टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी. व्हाई शुड आई be dependent on RBI when I can create decentralized ledgers. Right. ठीक है, similarly democratization of food is the next thing. वो होना बहुत जरूरी है, and that is the only thing which can create value in rural India and also be very beneficial for the consumers. कि consumer को पता रहेगा ना क्या खा रहा है. Adulteration नहीं होगा. किसान जितने नोड्स बढ़ाते रहोगे आप वैल्यू चेन में, वहां उतना अडल्ट्रेशन के चांसेस ज्यादा है ना. तो डेमोक्रेटाइजेशन डेफिनेटली इज हैपनिंग. मीडिया इज प्लेइंग अ बिग रोल, और वो शायद फूड में भी इज द नेक्स्ट थिंग which is going to happen. Got it. And how you deploy your time as a founder? आपका भी क्या कहाँ majority chunk of your time goes, and what are your plans for next 3-6 months for your brand? Yeah, definitely. So Shashank, as it's at a nascent stage, तो काफी सारा almost 60% of my time, I mean typical D2C brands अगर आप लोगे ना, तो D2C brand is 98% marketing and 2% operations. Right. In our case, we have to be very patient because we are working with institutions जो कि गांव में है और उनका भी बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग करना है. Unlike typical D2C companies जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस सेट हैं, all you need to do is marketing. Right. तो मेरा 50% टाइम अराउंड दीदी लोग का चीजें बिल्ड करने में जाता है. तो गांव एसएचजी की दीदियां हैं, वो सिस्टम्स बिल्ड करने में जाता है, जिससे वी आर बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर लोकल डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स. और बाकी 50-60% जो होई के ऑपरेशंस है, होई के मार्केटिंग है, उसमें जाता है. तो इट्स लाइक 50-50 गांव में और 50-50 आप समझ लीजिए एक स्टार्टअप बनाने में जा रहा है, और 50% जो है वो विलेज लेवल इंस्टीट्यूशंस बनाने में जा रहा है. प्लान फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months, शशांक, आई वुड से कि सो हम लोगों को जो विलेज लेवल इंस्टीट्यूशंस है ना, उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना देना है कि वी कैन फोकस मोर ऑन मार्केटिंग. राइट. तो अगर मार्केट हम अच्छे से कर पाए ना, अगेन कमिंग बैक टू द अमूल स्टोरी ना, कि वो ब्रांड पूल अगर बना पाए, तो अब अपने आप वो दीदी लोग का जो किसान दीदी लोग हैं गांव में, एसएचजी की दीदी लोग हैं, उनका अभी भी हम सारा नहीं खरीद पा रहे हैं प्रोड्यूस ना. वंस द ब्रांड पूल इज देयर, वो सारा का सारा प्रोड्यूस जो है वो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स के पास तक पहुंच जाएगा. एंड दैट इज हाउ वी लुक एट होई इन द फ्यूचर. ध्रुव, यू आर इन वेरी स्वीट स्पॉट जहाँ पे आप नॉन प्रॉफिट का काम कर रहे हैं, बट यू आर बिल्डिंग अ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे आप बीच में मैनेज करते हो? Again, very interesting. You have touched a pain point because I won't say it's a non-profit. Basically, aligned है vision. ठीक है, जो विलेज लेवल ग्रुप्स हैं उनको भी कुछ पैसा कमाना है. ठीक है, हम लोगों को भी बिजनेस चला रहे हैं तो पैसा कमाना है. इनफैक्ट इससे पहले मैं नॉन प्रॉफिट साइड में था. दैट इज वेयर माय थिंग केम अप कि कुछ चीजें गड़बड़ है. बिकॉज नॉन प्रॉफिट साइड में यू आर आस्क्ड टू स्पेंड मनी. ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉफिट रखना नहीं है. एट द एंड ऑफ द ईयर यू हैव टू स्पेंड द मनी. इनफैक्ट आज के CSR लॉज हैं, उसमें क्या है कि आपको साल के एंड तक पूरा यूटिलाइज करना है, अदरवाइज यू विल हैव टू गिव इट टू गवर्नमेंट. राइट. ठीक है, उस तरह के कुछ लॉज हैं. तो आई वोंट से इट्स अ नॉन प्रॉफिट मॉडल, इट्स अ फॉर प्रॉफिट मॉडल ओनली. बट प्रॉब्लम जो आप कह रहे हो, राइटली सेड बाय यू, कि कई बार वो इमोशनल चीजें आ जाती है ना, कि ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ वी वर काइंड ऑफ साइनिंग एन एग्रीमेंट, और हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. पहले सारी चीज अनऑर्गेनाइज थी. ठीक है, तो हम एक अग्रीमेंट साइन करते हैं दीदी लोगों के साथ कि देखिए इस प्राइस पे ये है, हम आपका सामान खरीदेंगे, इतना एडवांस रहेगा, और सो दैट थिंग्स आर ट्रांसपेरेंट. वहां पे कई बार चीजें आ जाती हैं कि नहीं, इतना नहीं, हमें थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए. बट देन अगेन, अगर अवर कैलकुलेशंस आर आल्सो कि हाँ ठीक है, 50% अपने ऑपरेशनल और मार्केटिंग एक्सपेंसेस के लिए रखना है, तो वो तो करना पड़ेगा दीदी. इस साल थोड़ा सा प्राइस आपका ज्यादा बढ़ गया, बट आप ये देखिए कि लॉन्ग टर्म में हम आपके साथ हैं. तो हम लोग अब ट्राई कर रहे हैं कि उनके साथ जॉइंट बिजनेस प्लानिंग एक्सरसाइज करने की, जिससे वो भी अपना बिजनेस प्लान करें, हम भी अपना बिजनेस प्लान करें, और इसको एक तरह से अलाइन करें, जिससे हमें
वो वाला एस्पेक्ट ना है कि मतलब समझ रहे हो कि मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूँ. Right. It's not like that. It's a building a new kind of value chain altogether. But this is one place जहाँ पे उत्तराखंड में you जी. have started. जी. But are there any other pockets that you see कि वहाँ के भी farmers के साथ we Right. can collaborate so that pan India presence उस तरह जी, का जी, कुछ जी. बन जाए? हाँ, डेफिनेटली, व्हाई नॉट. सो उत्तराखंड में स्टार्ट करने के पीछे शशांक ये रीजन था. सो इन हिली एरियाज ना, स्पेशली इन उत्तराखंड, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 12 अनाज. ठीक है. Okay. तो 12 अनाज क्या है कि 12 एक किसान जो है वो 12 तरह के अलग अलग क्रॉप्स लगाएगा एट अ गिवन टाइम. डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स, पल्सेस, सीरियल्स, फ्रूट क्रॉप्स, इस तरह का. इससे क्या है कि वो इकोसिस्टम पूरा बन जाता है उसमें. इस वजह से दिस इज व्हाट सस्टेनेबल फार्मिंग अकॉर्डिंग टू मी इज, कि ठीक है आप खाद तो नेचुरल डाल ही रहे हो, उसके अलावा जो पेस्ट अटैक्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो नहीं कम आते हैं, क्योंकि वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किस क्रॉप को खाऊं. हाँ, टिपिकल एग्रीकल्चर में वो प्रॉब्लम रहती है, और स्पेशली मोनोक्रॉपिंग में वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रही है, विच इज बिकम अ विशियस साइकिल. की अब मतलब एक कीड़ा आता है तो वो कीड़े रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है, फिर दूसरा पेस्टिसाइड बनता है, तीसरा बनता है, फिर Right. रेजिस्टेंस. यहाँ ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस है. तो सस्टेनेबल फार्मिंग की अगर बात करें तो हिली एरियाज में वो पहले से चल रहा है. इनफैक्ट पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन एक एडवांटेज भी ये रहा, क्योंकि वो एरियाज इतने दूर है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के ब्रांड्स थे वो पहुंच ही नहीं पाए वहां पे, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसीज वो अपनी नहीं रीच कर पाए. तो वहां Right. पे नेचुरल फार्मिंग हो रही है, इसलिए हम लोगों ने पहाड़ी एरिया से शुरू किया है. बट डेफिनेटली एज वी गो अलोंग वी वुड वांट टू स्टिक मोर टू एरियाज विच आर अंडर सर्व्ड. ट्राइबल एरियाज हो गए, हिली एरियाज हो गए, जहाँ पे मोनोक्रॉपिंग नहीं हो रही है. जहाँ पे मोनोक्रॉपिंग है वहां पे वॉल्यूम्स है, और वहां पे किसान कुछ ना कुछ कर ले रहा है मंडी Right. में बेच के. ट्रकलोड ऑफ प्रोड्यूस है, यहाँ पे ट्रकलोड नहीं है. एक ने एक बोरा सामान दिया, दूसरी ने दूसरा सामान दिया, किसी ने. तो इस तरह का यू नीड एग्रीगेशन सिस्टम्स, और उस तरह से आपको काम करना पड़ेगा. एंड फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट, एक ज्योग्राफी में आपके पास you have a variety of products, you Right. have variety of fruits, you have variety of vegetables. ऐसा नहीं है मोनोक्रॉपिंग है तो एक ही जगह एक ही चीज उग रही है. तो वो बिजनेस स्टैंड पॉइंट से हमारे पास क्या है कि वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ हाइपर लोकल प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स. ठीक है. वी आर मोर अवेयर अबाउट हाइपर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स विद द लाइक्स ऑफ क्विक कॉमर्स. बट अगर हाइपर लोकल प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स अगर आप बिल्ड कर लेते हो, देन नथिंग लाइक दैट. तो जहां जहां वो बिल्ड हो सकते हैं वहां पे हम लोग बेसिकली विल ग्रो बियॉन्ड उत्तराखंड आल्सो. Got it. And what role is tech playing? इसमें tech का कितना intervention है? डेफिनेटली. तो स्टार्टिंग हम लोगों ने टेक से ही करी थी. वी डिड नॉट वांट टू बिल्ड अ D2C ब्रांड. तो ग्राम से जो पेरेंट कंपनी है, इट्स कॉल्ड ग्राम से एग्रीटेक. तो इनिशियल प्लान वाज कि हम लोग एक ऐप बनाएंगे, टिपिकल सॉल्यूशन जो आता है कि टेक्नोलॉजी कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम. एक ऐप बनाएंगे, वो सारे दीदी लोगों के ग्रुप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको कंज्यूमर से कनेक्ट करेंगे. Right. कुछ प्रोटोटाइप्स बनाने की कोशिश करी, वेंट टू द कंज्यूमर्स. तो कंज्यूमर्स का मानना था कि अलग अलग जगह थोड़ा सा स्वाद बदल रहा था. ठीक है. थोड़ा सा ब्रांड परसेप्शन बदल रहा था, बिकॉज एवरी डिफरेंट एरिया हैज अ डिफरेंट, कुछ ना कुछ कोई अपना ग्रुप के नाम से चला रहा है. मान लो आरती देवी समूह, ठीक है, उमंग समूह, इस तरह के अलग अलग समूह के नाम थे. ठीक है. तो हम जब कंज्यूमर्स के पास गए, दे गॉट, हमें तो आइडिया था बिकॉज आई हैड दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, बट उन्हें आइडिया नहीं था. तो व्हाट वी थॉट दैट वील बिल्ड अ कॉमन ब्रांड फर्स्ट, लाइक व्हाट अमूल इज बेसिकली. अमूल भी विलेज ग्रुप्स का ही बेसिकली एग्रीगेट करके, देयर इज 18 डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव्स हैं, उनके ऊपर अमूल है. Right. तो उसके बाद हम होई में गए. अभी टेक मतलब हम लोग उस तरह के उस प्लान को वी हैव पार्क्ड इट फॉर लेटर. वी आर प्लानिंग टू बिल्ड अ D2C ब्रांड फर्स्ट, बट टेक उसमें वहां पे हम लोग यूज करें. जैसे वी आर वर्किंग हाईली ऑन ट्रेसेबिलिटी. Right. वो सिंपल टेक्नोलॉजी है यार, कि बस आप डेटा रिकॉर्ड करना शुरू कर दो, उसको QR कोड से एनेबल कर दो, वेब पेज पे जाएगा, कस्टमर आप स्कैन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस खेत से आया. इट्स अ वेरी सिंपल टेक. एक्सेल शीट से हो जाता है यार. बट यस, इन द लॉन्ग रन जैसे हम स्केल करते हैं, वी वुड नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक. मार्केटिंग टेक्नोलॉजी तो यूज कर रहे हैं, आई वोंट गेट इनटू दिस, वो एवरी D2C प्लेयर इज डूइंग. एग्रीटेक में ध्रुव, व्हाई यू फील कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी, बिकॉज वी आर नॉट सीइंग एनी यूनिकॉर्न इन द एग्रीटेक स्पेस. अब बाकी स्टार्टअप्स आ रहे हैं मे बी इन टेक स्पेस, D2C, क्विक कॉमर्स, बट अभी क्या मिसिंग है, जो मिसिंग पीस ऑफ पजल है जो अभी फाउंडर्स को सॉल्व करना चाहिए, और मे बी यू आर लुकिंग टू सॉल्व? डेफिनेटली यार, एग्रीटेक इट्स अ वेरी चैलेंजिंग स्पेस, इसीलिए शायद अभी तक यूनिकॉर्न नहीं बन पाया है. ठीक है. एग्रीटेक स्पेस में इट्स अ चैलेंजिंग स्पेस, बहुत प्रॉब्लम्स हैं. इट्स अ ह्यूज स्पेस टू प्ले अराउंड.
And operations heavy also क्या इट्स ऑपरेशंस हैवी. देखिए एग्री टेक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि हमारा इट्स एग्रीकल्चर सिस्टम इज बिल्ड अराउंड अ सोसाइटी. ठीक है. सो टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट अराउंड एग्रीकल्चर मीन्स यू आर मेकिंग अ पिवटल शिफ्ट इन द सोसाइटल नॉर्म्स. Right. ठीक है. तो आज की तारीख में भी अगर मैं बात करूं टिपिकल एग्रीगेशन की तो कोई गांव का ही मान लीजिए सरपंच का भतीजा है, उसका काम है एग्रीगेशन करना. ठीक है. हमारी लैंग्वेज में वो ट्रेडर हो सकता है, बट ही हैज गॉट वेरी डीप लिंक्स विद दिस. जनरली हैपेंस इन मार्केट्स वेयर द लैंड होल्डिंग साइज इज हाई. उत्तराखंड में इतना नहीं है, बट देन इसलिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल है बिकॉज इट्स वन अ सोशल प्रॉब्लम एंड सेकंड इमोशन भी बहुत हाई होता है. बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली. तो इसीलिए जो मैं बोल रहा हूँ कि वो अगर इफ दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ विमेन ना, क्योंकि आज की तारीख में अगेन ड्राइंग अ पैरेलल विद माइक्रो फाइनेंस सेक्टर और फिनटेक सेक्टर फॉर दैट मैटर, तो जो डिफॉल्ट्स होते हैं वो महिलाओं में कम होते हैं. ठीक है. तो उस तरह से अगर हम इफ यू आर फोकसिंग मोर ऑन विमेन फार्मर्स, उनके ग्रुप्स के अराउंड, कीपिंग इन माइंड कि वो सोसाइटल जो उनका कोहेजन है वो मेंटेन रहे. ठीक है. एक दूसरी दीदी के जो डायनेमिक्स है वो मेंटेन रहे, और उसके साथ में अगर आप बिल्ड करेंगे, टाइम लगेगा बट डेफिनेटली वो शायद वो हाइपर ग्रोथ ना आए, वो x to 10x 3 साल में ना आए, यूनिकॉर्न 4 साल में ना बने, सस्टेनेबल बिजनेस बनेंगे और इससे ओवरऑल इम्पैक्ट होगा. आई थिंक Kunal Bell recently coined this term indie cons, so I think indie cons बन सकते हैं. And how big is the team right now? अभी कितने लोग हैं? यार अभी छोटी है, 5-6 लोगों की टीम है, but that those people are on our payrolls, but I would say हमारे साथ 2500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं which are part of our team. So I never call myself founder, I call myself co-founder only, although kind of a solo founder only, but right. Co-founder इसलिए बोलता हूँ क्योंकि the other half of co-founding team is the women behind it. तो छोटी टीम है, बट बैक एंड ऑपरेशंस में इंस्टीट्यूशंस है जिनके साथ हम डीपली काम करते हैं, ऑल्दो पेरोल्स पे हम लोगों का छोटा मार्केटिंग ऑपरेशंस देखने के लिए टीम है. I think I'll come to the last question, and ये question सबके दिमाग में होगा भाई who is watching this podcast. How you took this leap of faith कि अब जॉब छोड़ के इसको स्टार्ट करना चाहिए? कोई फ्रेमवर्क था या कुछ इवैल्यूएशन किया? कैसे how you went about it? यार आई वुड से इवैल्यूएशन मेनली जो गांव में काम किया. मैं इससे पहले 5 साल रूरल डेवलपमेंट में काम किया, मल्टीपल स्टेट्स में काम किया यार, उड़ीसा के ट्राइबल एरियाज में काम किया, गुजरात में काम किया, अलग अलग मॉडल्स देखे, मध्य प्रदेश में काम किया, उत्तराखंड में भी कुछ काम किया. तो जो कॉमनैलिटीज देखी ना, वो कॉमनैलिटीज बहुत ज्यादा थी व्हेन इट कम्स टू वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग. ठीक है. इवन दो एग्रीटेक में भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, बट दे आर इनपुट ओरिएंटेड, बिकॉज इनपुट्स में क्या है कि इनपुट्स आइदर इनपुट ओरिएंटेड और कमोडिटी ओरिएंटेड, बिकॉज पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम इज बिल्ट अराउंड वैल्यूएशंस, और वैल्यूएशंस आते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बल्क टर्नओवर्स, कमोडिटी उठा ली. तो उन एरियाज में इतना काम नहीं हो पा रहा था जहाँ पे स्टार्टअप्स भी इतना काम नहीं कर रहे थे, और वहाँ पे फंडामेंटली भी चैलेंजेस थे. तो ये थीसिस थी बेसिकली कि जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे उतना काम नहीं हो रहा है, वो इवैल्यूएशन किया. और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कंज्यूमर ब्रांड के साथ एक काम किया है, तो थोड़े वो इनसाइट्स थे. अमूल के साथ में क्योंकि काम किया था, तो पता था कि कंज्यूमर ब्रांड में लोग क्या क्या चीज ढूंढना चाहते हैं, कैसे बिहेवियर शिफ्ट हो रहा है. पीपल आर लुकिंग टू see brands which are sustainable, traceable. तो उस तरह का इवैल्यूएशन था. बट अगेन डेफिनेटली वो टैम सैम सोम जैसी चीजें नहीं करी थी पहले, वो शायद अब हम कर रहे हैं धीरे धीरे करके, अलग अलग मार्केट्स जैसे एंट्री करने से पहले समझ रहे हैं उसको. बट yes, it was a basic idea of how rural ecosystems work and how what consumers are looking for, trying to marry them both. It was easy to make your parents understand कि अब मैं अपना कुछ करने जा रहा हूँ. यार पेरेंट्स, so one more thing, I lost my mom some time back. She passed away because of cancer. तो एक वो भी मोटिवेशन था उनको तो कन्विंस, जब ड्यूरिंग अ लास्ट डेज, तो वही वी यूज्ड टू टॉक अबाउट कि ठीक है बीमारी के पीछे रीजन क्या रहता है. a lot of such diseases are attributed to chemical fertilizers, pesticide, इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स, ये सब चीजें. तो वो एक रीजन तो था कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ काम करना है. तो ऑल्दो शी वाज नॉट एबल टू सी दिस, उनके जाने के बाद फिर स्टार्ट किया ये. बट फादर को हाँ कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल था. वो आज भी थोड़ा सा कभी कभी पूछते हैं, बिकॉज
कमिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जॉब का बैकग्राउंड था, अकाउंटेंट थे यूपी गवर्नमेंट में, तो उनका हमेशा वही अकाउंटेंट्स का टिपिकल डेबिट क्रेडिट वाला होता है ना, तो अभी भी मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ, बट यस समटाइम्स ही डेफिनेटली उनको नहीं समझ आता, तो उनको गांव ले जाता हूँ, दीदी लोग से मिलाता हूँ, तो कभी कभी पैट्स माय बैक ऑल्सो कि जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, बाकी तो ठीक है. Like, this is a great cause that you're working. I think one point that I missed out asking was quick commerce. जी जी जी. So do you see कि quick commerce will play a bigger role, or do you see them as a partner or a growth accelerator for you also going forward? Yeah, definitely. We are in talks with a few quick commerce company regarding onboarding. Quick commerce is going to change the game. So how I see, in fact, how I dream about the future of, food products, I would say, because उस domain में मैं काम कर रहा हूँ, is you have hyper local, procurement systems. पूरी supply chain खत्म कर दो, ठीक है. Quick commerce ने भी, for that matter, any e-commerce is trying to address the same problem ना, Right. कि तो लोकल प्रोड्यूसर्स हों, ठीक है, यू एड वैल्यू टू इट, एंड देन देयर इज अ सेट ऑफ हाइपर लोकल कंज्यूमर्स. इससे हम बहुत सस्टेनेबली ग्रो कर पाएंगे, बहुत एग्रीगेशन पॉइंट्स नहीं है, बहुत डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स नहीं है, और डेफिनेटली क्विक कॉमर्स, वी सी क्विक कॉमर्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर अस. और it's going to, even the giants like Amazon are kind of threatened by, the quick commerce boom. और इंडिया में definitely it's going to play a pivotal role because, लेबर इज चीप, तो आराम से आप डिलीवरी कॉस्ट कम ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आई मीन these giants are, getting to profitability now, so it is going to play a big role. And I think कि it will not remain a metro phenomena going forward. धीरे-धीरे smaller cities maybe they'll tap into. I think you're doing a great job. Wishing you full power going into 2025, and thank you so much for taking out time. Thank you, Shashank. Thank you so much. Pleasure being here. I hope that you enjoyed my conversation with Dhruv. Let me know in the comment section which other entrepreneur you want us to host on the platform. At the same time, subscribe to the channel for more such content and share this video with someone who might find it useful.